اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ میں سے ایک ایک کے لیے خدا کے پاس ایک شاندار منصوبہ موجود ہے. خدا آپ کے لیے ایک شاندار منصوبہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہے. اچھا، میں جب خدا کے کلام کے اس حصے پر غور کر رہا تھا تو یوسف، خداوند کا بندہ یوسف جو ہے وہ مجھ پر غالب تھا. یوسف کا عکس جو ہے وہ بار بار ابھر کر میرے سامنے آ رہا، کیونکہ یوسف کی کہانی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسانوں کی تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں اور خدا کی رضا کچھ اور ہوتی ہے. انسانوں کے ارادے، ان کی اسکیمیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن خدا کی رضا جو ہے وہ ہمیشہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. اور اس حقیقت کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں خداوند کا یہی بندہ پیدائش کی کتاب کے آخری چیپٹر میں کرتا ہوا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے. آئیے ذرا پیدائش کی کتاب کے 50ویں باب پر چلیں اور سنیں وہاں کیا لکھا. 19ویں آیت. یوسف نے ان سے کہا. کن سے؟ اپنے بھائیوں سے. اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں سے، اس کے خوابوں کو چکنا چور کرنے والوں سے، اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں سے اور اس کا سودا کرنے والوں سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اس سے نیکی کا قصد کیا. تم نے برا سوچا، تمہاری تدبیر، تمہاری اسکیم کچھ اور تھی، لیکن خدا نے الٹ کر رکھ دیا. تم نے بدی کا منصوبہ بنایا، لیکن خدا نے اسی بدی کو میرے لیے نیکی میں تبدیل کر دیا. میرے بچوں، یقینی طور پر ہمیں زندگی میں کئی بار ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ کو کسی بھی طور پر پسند نہیں کرتے. زندگی میں کئی بار میرا اور آپ کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمیں ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتے. زندگی میں ہمارا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنی چالیں بدلتے رہتے. زندگی میں میرا اور آپ کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے. زندگی میں میرا اور آپ کا سامنا ہمیشہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمیں پریشان اور تکلیف میں دیکھنا چاہتے. میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اگر کسی نے آپ کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی جال بچھا بھی رکھا ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ کے رب خداوند کے پاس آپ کے لیے شاندار قسم کا منصوبہ ہے. اگر کسی نے آپ کے لیے ایسا کوئی جال بچھا بھی رکھا ہے تو نوٹ کر لیں کہ خدا جو منصوبہ ساز ہے اس کے پاس آپ کے لیے شاندار قسم کا پروگرام ہے. اور خدا اس پروگرام کو آپ کی زندگی ہی میں فلفل کرے گا، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یوسف جیسا کریکٹر جو ہے وہ بنانا پڑے گا. رات بھی ہم اس بات کو سیکھ رہے تھے. پیدائش کی کتاب میں یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حسین اور خوبصورت تھا، ہینڈسم بھی تھا اور پھر اٹریکٹیو بھی تھا. اور میں نے رات بھی
भाई रफाकत के साथ, शगुफ्ता बेटी के साथ मैं था, और मैं इसी कलाम को फ्राइडे के रोज शारदा की कलीसिया से बांटते हुए उनसे कह रहा था कि आप में से कितने हैं जिन्हें इस बात का यकीन है कि वो खुदावन में होते हुए हैंडसम भी हैं और अट्रैक्टिव भी हैं। तो फिर चंद एक हाथ खड़े हुए, और जो हाथ खड़े नहीं हुए, शजर बेटा जानता है, फिर मैंने उन लोगों को प्यार से थोड़ा सा डांटा और कहा, क्या आप शक में हैं कि आप हसीन और खूबसूरत नहीं? जबकि ये बाइबल मुकद्दस, ये अजीम किताब और ऐसे 20 हवाले हैं जो हमें चीख चीख कर ये कहते हैं कि हम खुदा का मास्टरपीस हैं। खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया है, और उसकी सूरत और छवि पर होते हुए कोई कैसे कहे कि वो हैंडसम नहीं है, और कोई कैसे कहे कि वो अट्रैक्टिव नहीं है। चलो मेरे तो दंद भी पूरे नहीं रहे, 57 से आके थोड़ी जी शक्ल भी इंजरी हो गई, लेकिन शायर की तरह बैदल मैं तो ये कहूंगा, कभी हम भी खूबसूरत थे। मैं तो कहूंगा भाई, और नासिर भाई को, वजीशीला को साथ में लाकर कहूंगा, कभी हम भी खूबसूरत थे। अगर मेरी मां जिंदा होती तो आज भी वो कहती कि मेरे मुंडे नालों सोना तो है ही कोई। और अगर नाजिया के डैडी होते तो वो आज भी यही कहते कि मेरी कुड़ी नालों सोनी कुड़ी कोई। वालिदैन अपने बच्चों के बारे में हमेशा यही राय रखते हैं, लेकिन मैं रात को ये सिखा रहा था, गौर से सुनिएगा, बरकत मिलेगी आपको और आप बरकत लेकर खुदा के घर से जाएंगे। हमें प्यारे बच्चों सिर्फ हैंडसम और अट्रैक्टिव नहीं होना, हमें वेल मैनर्ड होना है। खूबसूरती को क्या करना है? हमें प्लेट में डाल के खाना है हमने इसे। खूबसूरती क्या है? अपने घरों में जाकर इंसान की किताब के 31वें बाब की 30वीं आयत को पढ़िएगा, वहां लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसवाब है। हुस्न धोखा है और जमाल बेसवाब है। और फिर पतरस के पहले आम खत के 3 बाब में खवातीन को यह तलकीन की गई है कि वो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर ना संवारें, बल्कि वो अंदर से अपने आप को संवारती रहें, क्योंकि ऐसी ही बेटियों की खुदा के हां लफ्ज क्या है? बड़ी कदर है। नोट कर लें बेटियां में, खुदा के हां आपकी कदर उस वक्त है जब आप अंदर से सजी हुई हैं। ये बाहर की ब्यूटी जो है, एक्सटर्नल ब्यूटी जो है, ये तो आज है और कल नहीं रहेगी। फिर आप मेरी तरह यही कह रहे होंगे, कभी हम भी खूबसूरत थे। लेकिन जब आप अंदर से सजे हुए होंगे तो फिर आप फॉरएवर यही कहते रहेंगे कि हम खूबसूरत थे, हम खूबसूरत हैं और हम खूबसूरत रहेंगे। नोट कर लेंगे, सिर्फ हैंडसम और अट्रैक्टिव होना ही कुछ नहीं, वेल मैनर्ड होना, तहजीब याफ्ता होना, बा इखलाक होना और फिर मुहज्जब होना ही असल में सब कुछ है। और अगर खूबसूरती है और उसके साथ अखलाक नहीं, उसके साथ तहजीब नहीं, उसके साथ तरबिया यानी तरबियत नहीं, उसके साथ आप सोबर नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं। ऐसी खूबसूरती को क्या करना है? मैं रात को सिखा रहा था कि इस दुनिया में लोग अपनी खूबसूरती को कैश भी करते हैं। बेटियां बैठी हुई हैं, मैं बहुत सी बातें नहीं कह सकता, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खूबसूरती को कैश करते और हर रोज अपने जिस्म का सौदा करते हैं। फिर से कहूंगा, हैंडसम और अट्रैक्टिव होना बड़ी बात नहीं है भाई, कैरेक्टर का होना बड़ी बात है।
और यूसुफ जो है एक ऐसा शख्स है जिसने अपने कैरेक्टर पर बहुत काम किया है। इसकी फाउंडेशन बड़ी सॉलिड है, इसीलिए लिखा है कि वो कपड़ा छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने किरदार पर किसी तरह की कोई आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौजवान सुन ले भाई, जिनको तरक्की करने का बड़ा चाव है, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, अपने करियर में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, नोट कर ले, तरक्की आपको मिलेगी। खुदावंद यूसुफ की तरह आपको बरकत पर बरकत देगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका ज़हन, आपका दिल, आपकी आंखें और आपके हाथ आलूदा नहीं होने चाहिए। अगर ज़हनों में गंद है, आंखों में गंद है और आपके हाथ आलूदा हैं, तो फिर यशायाह की किताब का पहला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तुम हाथ उठाओगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, इसलिए कि तुम्हारे हाथ तो आलूदा है। खुदा की आंखें नासिर भाई इतनी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। क्यों लिखा है कि खुदा यूसुफ के साथ साथ था और वो तरक्की करता करता और करता चला गया। चले फिर से अपने उसी पॉइंट पर चले आते। यूसुफ बच्चों बाइबल मुकद्दस का एक ऐसा किरदार है जिसके हवाले से स्कीमें बनाने वाले, जिसके हवाले से मंसूबे बनाने वाले जो हैं, उन्होंने हमेशा मंसूबे को प्लांट किया। और आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके लिए मंसूबों को प्लान करते हैं। आज जरा बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले इसके भाइयों ने इसके लिए मंसूबा प्लान किया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, देखो वो ख्वाब देखने वाला आ रहा है। बाइबल मुकद्दस में यही लिखा है। फिर उन्होंने मंसूबा बनाया, कहा कि इसको गड्ढे में डालो और डालकर इससे पूछो, अब तेरे ख्वाब कहां गए भाई, अब कहां गए तेरे ख्वाब, अब देखते हैं तेरे ख्वाब कैसे पूरे होते। फिर उससे सेल कर दिया, यह भी एक मंसूबे का हिस्सा था। फिर वो पोतीफार के घर में चला गया और वहां एक ना करदा गुनाह की सजा में एक ऐसा मंसूबा, एक ऐसी औरत ने प्लांट किया जो पोतीफार की बीवी है। उसने मुख्तलिफ मुलाजमों को भी अपने पास इकट्ठा कर लिया और जब उसका शौहर आया तो उसने कहा कि इस इब्रानी जवान ने मेरे साथ मजाक किया है। बाइबल में यही लफ्ज है। ये प्लान किया हुआ मंसूबा था जिसके तहत यूसुफ फिर से कैद में चला गया। मेरे और आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, कारोबारी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, कलीसियाई जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में, जो आपके लिए मंसूबे प्लान करते हैं। लेकिन फिर कहूंगा, इंसानों की तदबीरें कुछ और होती हैं और मेरे खुदा का मंसूबा आपके लिए कुछ और ही। एक खास बात जो आज के पैगाम की जान है, मैं उसे अब आपके साथ बांटने लगा। आप पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए, डेजिग्नेशन जो है वो एम नहीं बनता। डेजिग्नेशन जो है वो एम नहीं बनता। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती। आपका प्रोफाइल ऐसे नहीं बनता। ये स्टेज एम नहीं आ जाती कि आप गूगल में सिर्फ नाम टाइप करते हैं और पूरे का पूरा खाता जो है सामने आ जाता है। एम ही नहीं। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई बेवकूफ नहीं है कि वो मैकेंजी से और noon.com से और एप्पल से, अमेज़न से लोगों को उठाते हैं उनका डेजिग्नेशन देखकर और फिर उनको अपनी कंपनी में ज्यादा पैसों की ऑफर करके ले लेते हैं।
मैंने नासिर भाई जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स नहीं देखा, 57 साल मेरी उम्र हो गई, कि किसी प्रोजेक्ट पर वो मैनेजर था और अगले प्रोजेक्ट पर वो चपरासी था। ऐसा होता है? आपका डेजिग्नेशन जब सिल्विया एक बार सेट हो गया तो फिर लोग अपने करियर पर सौदा नहीं करते, लोग हल्के फुल्के पैकेज पर इत्तेफाक नहीं करते। फिर वो कहते हैं हमारा ये स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर तो जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, इस बात को कभी ना भूलिएगा कि खुदा के हां जब आपका डेजिग्नेशन सेट हो तो फिर खुदा उसे उस मयार से कभी आपको नीचे गिरने नहीं देता, आने नहीं देता। कैसे? अब इसका सबूत ले। यूसुफ अपने घर में था तो घर में भी सुपरवाइजर था, इंचार्ज था। बाप ने ड्यूटी लगाई हुई थी कि जरा भाइयों की जरा थोड़ी सी खबर लिया कर, और ये आपस में क्या करते हैं, मुझे आकर पूरी रिपोर्ट किया कर। अपने घर में भी इंचार्ज था। अच्छा, वहां से ये निकला तो पोतीफार के घर में चला गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो वहां भी इंचार्ज हुआ। डेजिग्नेशन है भाई। अच्छा, वहां से फिर उसे जेल भेज दिया गया, नाकदार गुनाह की सजा उसे मिली। और आप बाइबल मुकद्दस पढ़ लें, वो बाइबल मुकद्दस में जेल में होते हुए भी इंचार्ज हुआ। डेजिग्नेशन है भाई। वो बाबा जिससे रहना इंचार्ज ही करनी है, इंचार्जी तो थले ड्यूटी नहीं करनी। वहां से फिर उसे उठाया और जब वो बादशाह के महल तक पहुंच गया तो फिर वो वहां जाकर भी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर खुराक के हवाले से इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि बादशाह ने कहा कि तुझ जैसा अक्लमंद शख्स मुझे और कहां मिलेगा। एक बात नोट कर लें बच्चों, आप खुदा के साथ प्लग हो, अपने कैरेक्टर पर काम करें, अपने आप को आलूदगी से बचाएं। मैं आपको यकीन आज दिलाता हूं, खुदा की मेज पर आपको अपने साथ लाते हुए खुदा कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा। डेजिग्नेशन जो सेट हो गया खुदा के हुजूर आपका, वो सेट हो गया, उससे नीचे नहीं, उससे कम पर नहीं। खुदा ने जहां सेट कर दिया आपको, वो उससे नीचे नहीं आने देगा। उससे ऊपर तो आप जा सकते हैं, नीचे नहीं। तो अगर मेरी और आपकी जिंदगी में ये ऊंच नीच वाला तस्वुर है, कभी कुछ अच्छा पैकेज, कभी कुछ काम, फिर अच्छा, फिर काम, फिर अच्छा, फिर काम, इसका मतलब ये हुआ कि आप शायद कहूंगा ब्लेसेड तो हैं, स्टेबल नहीं है। और स्टेबिलिटी जो है ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप जहां भी हों आप सुपरवाइजर होते हैं, आप जहां भी हों आप इंचार्ज होते हैं, आप जहां भी हों आप ब्लेसेड होते हैं, प्रॉस्पर होते हैं। किसकी तरह? यूसुफ की तरह। चलें फिर से अपने पड़ोसी की तरफ मुंह कर लेंगे, अपने पड़ोसी की तरफ मुंह कर लें। आज प्रैक्टिकल आपको करना है, पहले भी किया, अब भी किया। अब सुन लें आपने क्या कहना है, और 2 बार ऊंची आवाज में कहना है। अपने पड़ोसी से कहना है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। कहें, फिर से कहें, अच्छा मुझे खुशी पता क्या है? मुझे खुशी यह है कि कई बार कुछ मियाँ बीवी बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी एक दूसरे से ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज कहते हैं। जिन्होंने कभी, नहीं सही गल, जिन्होंने कभी अपनी बीवी के साथ, ये शान सही बात है, कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज पादरी विलियम कह रहे तो कहनी पड़ रही है, सब चीजें मिलकर सब चीजें आपके लिए भलाई पैदा करती है। सचमुच खुदा के लोगों,
सचमुच खुदा के बच्चों, सब चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करती हैं। कई बार बहुत अच्छी चीजें और कई बार बहुत कम अच्छी चीजें, ये सारी की सारी चीजें मिलकर आपके लिए हमेशा भलाई पैदा करती हैं। लेकिन कब? जब आप यूसुफ की तरह खुदा के साथ चलते हैं, अपने करैक्टर पर काम करते हैं, अपने आप को आलूदा नहीं करते, और फिर खुदावंद में आप एक स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं, और उस स्टैंडर्ड से खुदा आपको कभी नीचे नहीं आने देता, कभी नीचे नहीं आने। चलें आगे बढ़ेंगे और फिर खुदावंद की मेज के पास आने के लिए तैयार होंगे। एक और एंगल से जरा इस बात को सीख रहे हैं, आपको बरकत मिलेगी। लोगों ने आपके साथ क्या किया? लोग आपके साथ किस किस्म का बिहेव करते हैं? लोग आपके साथ किस किस्म का सलूक करते हैं? लोग आपके बारे में किस किस्म की राय रखते हैं? लोगों की ज़हनियत, उनकी सोच आपके हवाले से क्या है? गौर से सुने, एक बड़ा जुमला देने लगा हूं। आपका रिएक्शन जितना कम होगा, आप उतने अजीम और फिर अजीम होते चले जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, जितना रिएक्शन आपका कम होगा, जितना आप कम रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, आप उतने खुदावंद के हुजूर अजीम होते चले जाएंगे। क्यों? सुनने और से, इसमें थियोलॉजी की बात है, इल्म इलाहियात की बात है। किसी भी शख्स के बुरा करने पर उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना असल में दुनियावी तौर पर अपने आप को छोटा करना है। और ये अजीम किताब कहती है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो खुदावंद में बड़ा किया जाएगा। तो बड़े होने का राज ये है, बड़े होने का राज यही है कि अगर मुझसे और मैंने किसी से ज्यादती की है तो फिर उसके अगेंस्ट में मुझे उस किस्म का रिस्पॉन्स न मिले। अच्छा क्या कहेंगे? बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी मिसाल की तरफ चलते हैं ना, जिसे मेरा यस्सु कहते हैं। यस्सु का रिस्पॉन्स क्या था? यस्सु का रिस्पॉन्स क्या था? लिखा है वो उनके सामने इस तरह से रहा जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने। अच्छा चलिए अब फिर आ जाए यूसुफ पर। कभी यूसुफ की जिंदगी पर गौर कीजिएगा। यूसुफ की जिंदगी में यही क्वालिटी है, इसी के कारण इसे मसीले मसीह कहा जाता है। ये मसीह के जैसे क्यों माना जाता है? उसकी बुनियादी वजह यह है, जिंदगी में इतना कुछ हुआ है लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नेगेटिव रिस्पॉन्स, नथिंग, जीरो रिस्पॉन्स। कुछ भी इसके साथ हुआ, ये खामोश रहा, और इसी खामोशी ने इसे फाइनेंस मिनिस्टर, एक बहुत बड़े ओहदे पर लाकर खड़ा। जितना रिएक्शन आपका कम होगा, नोट कर लें बच्चों, बार बार कह रहा हूं, उतना ही बड़ा और अजीम रुतबा आपको मिलेगा। ये हर वक्त अपने ऑफिस में चिड़े ना रहा है, मैडम इस तरह की है, बॉस इस तरह का है, मतलब हम थोड़े वर्गा ले आइए। आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में सारे लोग आपके जैसे हों, तो यूनिकनेस कहाँ रहेगी? सब आप जैसे हो जाएं तो दुनिया में काम कैसे चलेगा भाई? अगर सारे ही पादरी हो जाएं तो थले कौन रहेगा भाई? यहां कौन बैठेगा? कौन सुनेगा? आप चाहते हैं कि सारे आपके, और मुझे उस वक्त बड़ी चिढ़ होती है जब आप अपने ऑफिस के हवाले से ना बदखोई कर रहे हो। अरे भाई, यही तो आपके लिए टेस्ट है। खुदा ने आपको वहां रखा ही यूसुफ के तरह इसीलिए है कि आपको चेक करे कि आप उस टेस्ट में कामयाब होते भी हैं या नहीं। तो जरा रिएक्शन थोड़ा कम है, थोड़ा कम कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं,
खुदावंद आपको बहुत 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 बरकत देगा। किसी भी चीज को लेकर मेरे और आपके रब खुदावंद का रिएक्शन क्या है? और जब फिर मैं इस किताब को इस हवाले से पढ़ता हूं तो आप यकीन माने जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। मेरे खुदा का रिएक्शन क्या है? वो अपनी बारिश को नेकों और बदों दोनों पर और अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमका रहा है। ये उसका रिएक्शन। और जब हम अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम मसीही हैं, तो फिर मसीही होने का मतलब क्या है? मसीह के जैसे हम और ना, हो गया ना, हो गया बस, ठीक है, चुप रहे। एक बात याद रखिएगा, दो तरीके होते हैं, या तो आप मुकाबला कर लें या फिर आप अपने हालात को खुदा के कदमों में रखें। लेकिन एक बात फिर मैं थियोलॉजिकली आपको बताना चाहता हूं, इसको नोट कर ले भाई, ये इल्म इलाहियात की बात है। कभी भी अपने मुंह से किसी के लिए ये लफ्ज ना निकालें कि हमने तो जी खुदा पर छोड़ दिया, बदला तो पैसा खुदा ले। ओ भाई, खुदा का नाम लें। किसी भी बहन भाई के लिए, माँ बाप के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए बदला ना मांगे, खुदा का रहम मांगे। आप खुदा के इंसाफ की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं भाई साहब हमने तो अपना आप ना खुदा पर छोड़ दिया है, वो इंसाफ। और मैं कहता हूं बचें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मेहरबानी से कभी ये दुआ ना करें कि खुदा इंसाफ करे, ये दुआ करें कि खुदा रहम करके उस जिंदगी को वापस लाए। याद रखिएगा बच्चों, खुदा की मेज पर हम आने वाले हैं। अगर वो हम में से एक एक को जज करने लगे ना, तो आज कोई भी इस मेज पर आने के लायक नहीं। लेकिन उसका रिएक्शन देखें, सारा महीना हम पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, अपने मयार से कितनी बार गिरते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मेजबान खड़ा होकर यहाँ खड़ा हो जाता है, अपनी रोटी नेकों के लिए भी और अपनी रोटी, मैं माजरत के साथ कहूंगा, बदों के लिए भी खोल देता है। आ जाओ एक खा लो, कोई मुश्किल नहीं। पंजाबी बाइबल का खुदा कहानी मंड नहीं कर सकता, असी कर रहे हैं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबको प्यार करता है और उसने दुनिया से प्यार किया है, और दुनिया से प्यार करते हुए इतना प्यार किया है जितना प्यार कोई कर नहीं सकता। चलें आखिरी जुमला क्या कर सकते, फिर हम खुदा की मेज पर। मैंने शारदा में एक प्रैक्टिकल और भी करवाया। मैंने कहा कि हमेशा जब मैं लोगों से पूछता हूं तो लोग अपनी नाकामियां मुझसे शेयर करते हैं, जबकि हर इबादत के इख्तिताम पर, गौर से सुनिएगा, ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है, हर इबादत के इख्तिताम पर आप मेरे साथ ये गा रहे होते हैं, यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में हम फतह पाते हैं। तो मैंने शारदा कलीसिया में खड़े होकर कहा, आज के बाद से हम ये गीत कभी नहीं गाएंगे। या तो अपनी सोच बदल लें, या फिर आज से मैं गीत बदलने लगूं। हम कभी ये गीत नहीं गाएंगे कि यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से हम फतह पाते हैं। उसी की हमेशा नाकामियां ना रोना होंगे, और चर्च में खड़े होकर ये कह रहे होते हो कि हम फतह पाते हैं, हम फतह पाते। अरे भाई, माना कभी मैं नाकाम भी होता हूं, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो नाकाम होते हुए ये कहना चाहिए कि आए शैतान तू सुन ले, अब की बार यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में मैं फतह पाऊंगा। तो मैं भी आपसे कहूंगा, या तो गीत गाने छोड़ दें, या फिर कामयाब होकर दिखाएं और साबित करें कि वाकई आप यस्सु के नाम में कामयाब होते और होते चले जाते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी की जो जंग इस हुए जमीन पर मैं और आप लड़ रहे हैं, इस जंग में मैं और आप अकेले नहीं, ये जंग मेरी और आपकी नहीं, ये जंग तो मेरे और आपके खुदावंद की है। इसीलिए कहा ये गीत, इसीलिए बनाया गया, डाल बनामा यस्सु, डाल बनामा यस्सु। ये इंडोनेशियन वर्जन है भाई, डाल बनामा यस्सु, डाल बनामा यस्सु। यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में हम फतह पाते हैं। लेकिन पाते कब हैं?
جب ہم اپنے بیٹے راج کے ساتھ مل کر بلسان، آشر، نیلسن اور اسد کے ساتھ مل کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یسو دا سپاہی ہاں ضرور لڑا۔ آئیے دعا کریں۔ میرے خداوند تیرے کلام کی گہری اور